Now, hello everyone. Again, welcome in video lecture class. Today, I am going to talk about the topic that is educational projection. The particular topic related to MEd semester 3 in specialization paper secondary and हायर सेकेंडरी एजुकेशन. आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ शैक्षिक प्रक्षेपण. यह टॉपिक एमएड सेमेस्टर 3 के अंतर्गत सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन जो स्पेशलाइजेशन पेपर है उसमें यूनिट 1 के अंतर्गत आता है. इसके पूर्व के वीडियो में दैट मीन्स इन द अर्लियर वीडियो I have also discussed the meaning and introduction of educational projection. इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने शैक्षणिक प्रक्षेपण के संबंध में प्रक्षेपण का शब्द कैसे वो ओरिजिन क्या था उसका और शैक्षणिक प्रक्षेपण क्या है उसके बारे में मैंने बताया था. आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ मोस्टली दैट इज ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एजुकेशनल प्रोजेक्शन. दैट मीन्स इसके शैक्षणिक प्रक्षेपण के क्या उद्देश्य हैं, साथ ही साथ उसका विवरण किन किन क्षेत्रों में कहाँ तक है, क्या उसका आधार है, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ. जब कभी मैं उद्देश्य की अगर बात करूँ दैट मीन्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल प्रोजेक्शन इज टू enhance the ability and the credibility of the student and how you have to usage the mode of projection especially in the process of enrollment of the student. जैसा कि इसके पूर्व में मैंने एजुकेशनल प्रोजेक्शन दैट मीन्स शैक्षिक प्रक्षेपण के बारे में बताया कि ये एक ऐसा आधार है कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को कैसे जो है वह दिखा रहे हैं, क्या उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए, इससे संबंधित है. यहाँ पर एजुकेशनल व्यू की अगर बात होती है तो निश्चित ही छात्रों से संबंधित, शिक्षा से संबंधित एजुकेशन की जो सिस्टम बनती है उससे संबंधित होती है. और जब मैं विवरण की अगर बात करता हूँ, छात्र की जनसंख्या के अनुसार क्या स्थिति है, कैसे उनका नामांकन का आधार, क्या पूर्वानुमान है, इन सभी चीज़ों की क्या उससे संबंधित मॉडल है जिससे कि अत्यधिक मात्रा में नामांकन हो, खासकर वोकेशनल वे में उनका काम हो. तो इन सभी चीज़ों की अब मैं आपसे विस्तार से बात करने जा रहा हूँ. नाउ अगेन वेलकम टू वीडियो लेक्चर क्लास एमएड सेमेस्टर 3 पेपर 9B secondary and higher secondary education. Educational projection. Objective. The most important two objective. Number one, the educational forecast purpose is to evaluate the development of educational level within the population as well as to forecast the expected number of people taking up the various education level. Number two, in addition to this, the forecast can be used to evaluate policy effects on the uptake of the education level and in doing so also forecast the policy effects on overall education level in the population. Now description. Number one, development in educational level. In the long run, development in education level of population depends on enrollment rates of the various education level as well as how many of those enrolled students complete their education. Because of this, the model forecasts the expected number of skilled and unskilled individuals as well as the number of individuals that complete a higher education. The more people that start an education as well complete it results in an increased number of educated individuals. Number two, importance of model. The importance of model following individuals through their education is highlighted by the differences in the individuals that start a high school education as opposed to starting a 10th grade. Those that start a high school education after the 9 compulsory years of primary schooling are more likely to take a medium to long term higher education, whereas those that complete 10th grade are more likely to take vocational educations.
The model is based on the educational behavior observed from 1989 to most recent statistics, which are typically 2 years earlier than the year of publication. As such, the expected take-up and the number of completed educations are based on the latest observed data. Number 3 provides the forecast with some credibility. These provides the forecast with some credibility as it is based on observables. The observed numbers are used to add the statistical model to estimate the numbers that form a primary forecast. There are, however, situations where it is appropriate to correct the estimated numbers. Example, in case of explicit policy reform. An example of such correction was done in 2015 in response to the vocational education reform, which introduced a range of increased enrollment requirements. Number 4, direct impact on number of students. The reform had a direct impact on the number of students enrolled in vocational education, which had a direct consequence of lowering the uptake and was thus recorded in the data. One might expect that the number of dropouts would decrease as a result of the reform, which has been supported by the analysis of educational program. However, it is not fully accounted for by the education statistics. Full stop. If the data were not corrected, the model would underestimate the number of people which complete a vocational education. Therefore, the completion likelihoods are adjusted in accordance with the effect calculated by the Ministry of Education. अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट कर दूं। एजुकेशनल यानी शैक्षिक प्रक्षेपण, जिसको कि पूर्वानुमान भी हम लोग कहते हैं। नंबर 1, 2 ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1, शिक्षा पूर्वानुमान का उद्देश्य जनसंख्या के भीतर शिक्षा का स्तर के विकास के साथ साथ विभिन्न शिक्षा स्तरों को लेने वाले लोगों की अपेक्षित संख्या का अनुमान लगाना है। दूसरा, पूर्वानुमान का उपयोग शिक्षा स्तरों के ऊपर नीतिगत प्रभावों के मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है और ऐसा करने के लिए जनसंख्या में समग्र शिक्षा स्तर पर नीतिगत प्रभावों का भी पूर्वानुमान लगाया जाता है। विवरण, 4 मुख्य बातें हैं इसमें। नंबर 1, शिक्षा स्तरों में विकास। लंबे समय से जनसंख्या के शिक्षा स्तरों में विकास विभिन्न शिक्षा स्तरों के नामांकन दर पर निर्भर करता है और साथ ही कितने नामांकन छात्रों ने अपनी शिक्षा पूरी की है। इस वजह से मॉडल कुशल और अकुशल व्यक्तियों की अपेक्षित संख्या और साथ ही उच्च शिक्षा पूरी करने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाता है। जितने अधिक लोग शिक्षा शुरू करते हैं उतने ही शिक्षित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है। दूसरा, मॉडल का महत्व या मॉडल के महत्व। अपनी शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों का अनुसरण करने वाले मॉडल के महत्व को उन लोगों में अंतर से उजागर किया जाता है जो 10वीं कक्षा शुरू करने के विपरीत एक उच्च विद्यालय शिक्षा शुरू करते हैं। जो लोग प्राथमिक शिक्षा के 9 अनिवार्य वर्षों के बाद एक उच्च विद्यालय शिक्षा शुरू करते हैं, उनमें माध्यम से लंबी अवधि की उच्च शिक्षा लेने की संभावना होती है, जबकि 10वीं कक्षा को पूरी करने वालों में व्यावसायिक शिक्षा लेने की संभावना अधिक होती है। मॉडल 1989 से सबसे हाल के आंकड़ों के लिए देखे गए शैक्षिक व्यवहार पर आधारित है, जो आमतौर पर प्रकाशन के वर्ष की तुलना में 2 साल पहले होते हैं, जैसे अपेक्षित लेआउट, दैट मीन्स जो पिक्चर दिखाया जा रहा है, और पूर्ण शिक्षा की संख्या न्यूनतम देखे गए आंकड़ों पर आधारित हैं। नंबर 3, विश्वसनीयता के साथ पूर्वानुमान प्रदान करना। यह कुछ विश्वसनीयता के साथ पूर्वानुमान प्रदान करता है क्योंकि यह वैधता पर आधारित है। अवलोकन किए गए नंबरों का उपयोग सांख्यिकीय मॉडल की संख्या का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है जो प्राथमिक पूर्वानुमान बनाते हैं। हालांकि ऐसी परिस्थितियां हैं जहां अनुमानित संख्याओं को सही करना उचित है। उदाहरण, अस्पष्ट नीति सुधार के मामले में। इस तरह के सुधार का एक उदाहरण 2015 में व्यावसायिक शिक्षा सुधार के जवाब में किया गया था, जिसमें कई नामांकन आवश्यकताओं की वृद्धि हुई थी। नंबर 4, नामांकित छात्रों की संख्या पर सीधा प्रभाव। सुधार का व्यावसायिक शिक्षा में नामांकित छात्रों की संख्या पर सीधा प्रभाव पड़ा, जिसका सीधा परिणाम यह था कि यह तेजी से कम हुआ और इस प्रकार आंकड़ों में दर्ज किया गया। एक उम्मीद कर सकते हैं कि सुधार के परिणाम स्वरूप ड्रॉप आउट की संख्या में कमी आएगी, जिसे शैक्षिक कार्यक्रमों के विश्लेषण द्वारा समर्थित किया गया है। हालांकि यह पूरी तरह
से शिक्षा का आंकड़ों का हिसाब नहीं है। यदि डेटा को ठीक नहीं किया गया था तो मॉडल उन लोगों की संख्या को कम करेगा जो एक व्यावसायिक शिक्षा को पूरा करते हैं। इसलिए पूर्ण संभावना को शिक्षा मंत्रालय द्वारा गणना किए गए प्रभाव के अनुसार समायोजित किया जाता है। इस प्रकार से मैंने इन चारों पॉइंट, उद्देश्य और विवरण को स्पष्ट किया। तो इस प्रकार से देखा आपने कि मैं उद्देश्य इसका क्या था, शैक्षिक प्रक्षेपण का, शैक्षिक पूर्वानुमान का, साथ ही साथ इसकी क्या आधार थी, सरकार क्या इसकी चाहती है, कैसे ये काम हो, उससे संबंधित विस्तार से मैं बात किया। और साथ ही इस चीज़ को भी मैंने स्पष्ट किया कि आंकड़ा क्या करता है, डाटा के अनुसार जो है वह कैसे काम हो और कैसे जो है वह अधिक से अधिक मात्रा में छात्रों, खासकर जो ड्रॉप आउट हैं, उनको कम किया जाए और अधिक से अधिक मात्रा में शिक्षित हों, अधिक से अधिक मात्रा में सबका नामांकन हो। उद्देश्य स्पष्ट है कि पूर्वानुमान लगाकर जो व्यवस्थाएं, जो समस्याएं हैं, उसका समाधान किया जाए और छात्रों को जो उच्च शिक्षा है या उच्चतर शिक्षा है उस पर अधिक से अधिक उनका इनरोलमेंट हो, ताकि वो अपनी जो स्थिति है उसको सही करें, सुदृढ़ करें। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक वैसे हमारे जो भी स्टूडेंट हैं जो कि उसको फॉलो कर रहे हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो आपको जल्द से जल्द यथाशीघ्र आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और वीडियो के साथ और एजुकेशनल प्रोजेक्शन के एक और दूसरे पार्ट के रिमेनिंग जो पार्ट बचे हुए हैं उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।